Hello everyone, welcome back to this channel. Hope you all are doing good. This series is specially designed for finance accounts assistant. In this series, we will cover everything from basic to advanced level. Our aim is simple to help the students to score 30 out of 30 in the accounting section. Before jumping into the questions, I am going to explain a concept which is the foundation of this lecture, and then all other lectures will become much easier. So stay focused, watch till the end, and don't forget to like and subscribe if you find this helpful. Now let's begin with the concept. We know accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating. We have to identify a transaction which is financial transaction or non-financial transaction. Then we measure this transaction in terms of monetary value. Then we record the transaction in our books. First book, that's primary book, that's journal, and we often called it as original book. Then we classify those transactions in ledger accounts, and these ledger accounts are also known as final books, also secondary books. Then we summarize every transaction in trial balance, trading account, profit and loss account, or balance sheet, or we can say financial statements. Then we analyze and interpret for decision making, and then we communicate our results with the users. Users can be internal as well as external. So, what we have learned? We have learned from identifying, measuring, recording, classifying. This phase, step number one, this is called as bookkeeping. Then summarizing, analyzing, interpreting, and communicating. This phase, step number two, this is known as accounting. So we can say that first step is bookkeeping, then we will go for accounting. In bookkeeping, we go from journal, then ledger, then trial balance. Yes, trial balance is a part of summarizing, but its nature is bookkeeping. So we can say that from जर्नल टू ट्रायल बैलेंस हम बुक कीपिंग मानते हैं इसको. देन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनको हम अकाउंटिंग बोलते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग एक जस्ट ए रिकॉर्डिंग फेज है और इसको कोई भी क्लर्क डन कर सकता है. अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोथ आर द सबसेट्स ऑफ अकाउंटेंसी. पहले पहले बुक कीपिंग आएगी, फिर अकाउंटिंग आएगी, फिर दोनों आएंगे अकाउंटेंसी में. ये आपने समझा कॉन्सेप्ट. वी हैव टू रिमेंबर दीज स्टेप्स. आइडेंटिफाइंग पहला स्टेप है, हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम मेजर करते हैं उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी वैल्यू में, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में जो कि प्राइमरी बुक है, फिर हम क्लासिफाई करते हैं लेजर अकाउंट्स में, फिर हम समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट चेक करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट चेक करने के लिए, और बैलेंस शीट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए. We know that trading account and profit and loss account gives us financial performance while balance sheet gives us financial position. तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम आगे चलते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर. बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, taking all steps from recording to transactions in the books of original, यहाँ पे देखिए original entries to preparation of final accounts. नहीं, मैंने अभी बोला बुक कीपिंग में पहले रिकॉर्डिंग होती है. फाइनल अकाउंट्स किस में आते हैं?
अकाउंटिंग में आते हैं, यानी कि स्टेप 2 में आते हैं, ये नहीं। फाइनल अकाउंट्स नहीं, बिल्कुल नहीं। टेकिंग ऑल स्टेप्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या होता है? वी नो, पहले बुक कीपिंग आती है, जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। कीपिंग बुक्स वो क्या होता है? रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स। बुक्स में हम बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन 2 टाइप की होती है, मैंने पहले ही बोला आपको, ट्रांजैक्शन 2 टाइप की होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बट हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस की रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स या ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर है सी पार्ट। हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हमें बोलते हैं कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। सो इन दिस बुक्स हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ओनर की ट्रांजैक्शंस को नहीं। सो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। इसका सही आंसर आएगा सी पार्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। Accounting starts where bookkeeping begins, where bookkeeping ends, where books are not maintained at all after preparing final accounts। आप ही बोले, जब मैंने पहले कॉन्सेप्ट बोला, बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होती है फिर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। हाँ, आप ये याद रखना कि बुक कीपिंग आता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस समराइजिंग का पार्ट है। अगर ऐसे बोलेंगे आपको कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, तो ये बुक कीपिंग है। समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, ये अकाउंटिंग है। बट इस समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस भी आता है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी आता है, बट ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। आप ये याद रखना, ट्रायल बैलेंस अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। सो क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बिल्कुल, जहाँ पे यहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है फिर अकाउंटिंग शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। किन चीज़ों की हम रिकॉर्डिंग करते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रांजैक्शंस 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आपको ये समझना है ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या फ़र्क है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में वो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल होती है, नॉन फाइनेंशियल होती है। अकाउंटिंग हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आएगा, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नॉन फाइनेंशियल की तो हम नहीं करते, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों इनकी भी नहीं करते। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है? पर्सन अलग है, ओनर अलग, ये बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, ऑल ऑफ द अबव है। मैंने आपको पहले ही बोला, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये आप याद रखो। समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। रिकॉर्डिंग भी है, बिल्कुल, वी रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। क्लासिफाइंग, वी क्लासिफाई इनटू लेजर अकाउंट्स, बिल्कुल ये भी है। वी समराइज, हम फिर समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। होप you are getting all the things. Which of the following is not a business transaction? हमें वो ट्रांजैक्शन बतानी है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000 फॉर बिजनेस,
बिल्कुल ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेड 25,000 एज सैलरीज टू एम्प्लॉयज, बिल्कुल ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। प्रोपराइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट से प्रोपराइटर जो ये ओनर है उसने अपने बेटे के फ़ी के लिए पैसे दिए, तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये प्रोपराइटर की खुद की एक ट्रांजैक्शन है। डी पार्ट हम भी देखते हैं। प्रोपराइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस यानी कि इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं ड्राइंग। प्रोपराइटर ने खुद के लिए पैसे निकाले बिजनेस से, वो एक बात है, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, बिल्कुल ये बिजनेस की है। बट यहाँ पे हमें क्या बोलना था, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो सी पार्ट। प्रोपराइटर पेड 10,000 फॉर स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। Riaz is a furniture dealer. Which of the following will not be recorded in the books? रियाज एक फर्नीचर डीलर है, वो क्या अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा? परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000, सोफा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। इसका सही आंसर है सी पार्ट, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000। रियाज ने घर से अपना फर्नीचर निकाला, उसको सोल्ड किया, सो वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग की क्या फंक्शन है? तो असर्टन प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल मैंने ये भी बोला। यहाँ पे मैंने जब समराइजिंग फेज़ में हम क्या बनाते थे, पहले ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस हमें फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट से हमें लास्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस मिलता था, या ग्रॉस प्रॉफिट हमें नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिलता था। तो असर्टन होती है फाइनेंशियल ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, बिल्कुल फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से हमें मिलती है, बिल्कुल। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द वेरियस पार्टीज, बिल्कुल लास्ट स्टेप जो है कम्युनिकेटिंग, वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें प्रॉफिट आया या लॉस आया इस अकाउंटिंग ईयर में, हम वो यूज़र्स को देते हैं इंफॉर्मेशन। सो यूज़र्स यूज़ दैट इंफॉर्मेशन, वो अपने डिसीजंस लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को देख के कि इस फर्म को प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये भी है, आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू, क्या नहीं है अकाउंटिंग की फंक्शन? रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस, बिल्कुल है ये, हमें नॉट बोलना है, बिल्कुल ये है। हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहले ही हम प्राइमरी बुक्स यानी कि जर्नल में करते हैं रिकॉर्ड, वो इस जर्नल को हम यहाँ पे ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं। रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोपराइटर, बिल्कुल नहीं। असर्टन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस, बिल्कुल ये भी हम करते हैं। असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, बिल्कुल ये भी हम करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से मिलती है? बैलेंस शीट से, बिल्कुल। फाइनेंशियल, अगर मैं ये कहूँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें कहाँ से मिलती है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देना। सो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोपराइटर। मैंने पहले भी कहा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस ओनर अलग, बिजनेस अलग। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट फाइनेंशियल इन कैरेक्टर? मैंने आपको पहले ही बोला, जब ट्रांजैक्शंस हम
आइडेंटिफाई करते हैं तो दो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक होता है, या हम ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट बेस पे भी लेते हैं, लेकिन ओब्लिगेशन उसमें भी जाती है कि एक दूसरे को पैसे देने हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। हमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनमें से बोलनी है। हम परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, बिल्कुल हमने एसेट लाया क्रेडिट पे, वो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ एसेट ऑन कैश, बिल्कुल ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस, बिल्कुल ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी पार्ट। चलते हैं आगे। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज, हम पहले देखेंगे ही नहीं ऑप्शंस। हमने क्या बोला? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। लास्ट स्टेप है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या करना? यूजर्स को कम्युनिकेट करना, यानी या हमें प्रॉफिट आया, लॉस आया। प्रोवाइडिंग, ऑप्शंस पे चलते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइज, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन, बिल्कुल है ही नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन, हम पहले ही रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल ये भी नहीं, हम पहले समराइजिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं पहले ही। टू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन अंडर सेपरेट हेड्स इन द लेजर, बिल्कुल ये भी नहीं, लेजर हम क्लासिफाई करते हैं लेजर में। लास्ट स्टेप है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिंग, दैट्स ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं आगे। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विथ, अकाउंटिंग साइकिल आपको पता है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन लेजर, लेजर में यानी कि क्लासिफाई करना। इस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्ड करना किस में? पहले हम रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक्स यानी कि जर्नल में। प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, नहीं बिल्कुल, वो समराइजिंग में होता है। प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं बिल्कुल, वो भी समराइजिंग में होता है। यानी कि रिकॉर्डिंग करते हैं हम पहले इसमें प्राइमरी बुक्स में, जर्नल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इनमें हमें बोलना है कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कौन सा नहीं है। नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, बिल्कुल इट इज़ एन एडवांटेज। हमें, आपको पता है, हम जब बुक्स बनाते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन हम क्रोनोलॉजी के ऑर्डर से लिखते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें रहता है। कंपैरेटिव स्टडी, बिल्कुल, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। इसका सही आंसर है सी पार्ट, इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है? ओनली एन आर्ट, ओनली ए साइंस, आर्ट एज वेल एज साइंस बोथ, नीदर आर्ट नॉर साइंस। अकाउंटिंग, ये आप याद रखना, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस बोथ। इसका सही आंसर है सी पार्ट। चलते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगी और भी बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे। बैक टू द क्वेश्चन, इफ़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज़ वेरीफेबल बाय डॉक्यूमेंट्स, इट हैज़ अ क्वालिटी ऑफ। बोल रहा है अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है और वो वेरीफेबल होती है बाय द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वोचर से हम कैसे वेरीफाई करते हैं एक ट्रांजैक्शन को।
वोचर से वेरीफाई करते हैं। तो उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? रिलेवेंस कहते हैं क्या, रिलायबिलिटी कहते हैं क्या, अंडरस्टेबिलिटी कहते हैं क्या, या कंपैरेबिलिटी कहते हैं? इसका सही आंसर है रिलायबिलिटी। अब हम थोड़ी सी इन ऑप्शंस की सर्जरी करते हैं। रिलेवेंस होता है कि हमें ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी होता है कि जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, हमारे पास रिपोर्ट्स है, हमारे पास स्टेटमेंट्स है, ये रिलायबल है, यानी कि इनके पीछे इनको वेरीफाई करने के लिए वोचर्स है, सोरस डॉक्यूमेंट्स है। उन चीज़ों से, वोचर्स से, सोरस डॉक्यूमेंट से इस अकाउंटिंग के ऊपर एतमाद ज़्यादा होता है हमें। अंडरस्टेबिलिटी, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हमें वो ट्रांजैक्शन बोलनी है जो जिसका नेचर फाइनेंशियल हो और वो हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में। ऑप्शन नंबर 1, गुड्स टेकन फ्रॉम ए बिजनेस बाय ए प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। B part, interviewing the candidate for the employment. C part, sale of household furniture. D part, receiving an order for sale of goods. इसका सही आंसर है A part, यानी कि उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ऑपरेटर है, जो ओनर है, उसने बिजनेस से चीजें ली घर के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। सो इट इज द फाइनेंशियल कैरेक्टर। इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं है। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, उससे क्या हमें है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डिजाइनिंग द सिस्टम्स ऑफ समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा, बिल्कुल भी नहीं। इंटरप्रेटिंग, बिल्कुल भी नहीं, इंटरप्रेटिंग तो बहुत दूर की बात है। प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर है ए पार्ट, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डेटा। हम फिर से रिकॉल करते हैं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड क्लासिफाइंग। पहले 4 जो है ये बुक कीपिंग में, आखिरी 4 जो स्टेप 2 है ये अकाउंटिंग में। या ऐसे अगर हम बोलेंगे, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, क्लासिफाइंग इन लेजर, बट समराइजिंग का ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये बुक कीपिंग में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो अकाउंटिंग में, ये 3 बुक कीपिंग में। और ये पहले 4 स्टेप बुक कीपिंग में, आखिरी 4 स्टेप अकाउंटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? यहाँ पे हमें बोलना है कि सब फील्ड यानी कि ब्रांच कौन सी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल है ब्रांच है। बुक कीपिंग है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंट बिल्कुल है। कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल है। इसका सही आंसर है बी पार्ट, यानी कि बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज नॉट अ सब फील्ड, यानी कि ब्रांच बुक कीपिंग नहीं है। इट इज अ पार्ट, इट इज अ स्टेप 1, इट इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, आप वो ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन गेट PDF फ्रॉम दैट वेरी ग्रुप। थैंक यू सो मच, सी यू सून।